سراپا نور کی انوار کی ضرورت ہے، پھر اس سرزمین کو سرکار کی ضرورت ہے، بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گی، پھر ہمیں احمد مختار کی ضرورت ہے، بروز حشر ہر ایک امتی پکارے گی، پھر ہمیں احمد مختار کی ضرورت ہے، وہی احمد مختار، وہی آقا ماوا منجا نبی، شمس الدہا نبی، بدر الدجا رسول، نور الورا رسول، کہف البراد رسول، میرے آقا ماوا منجا نبی، گرتوں کو اٹھانے والا نبی، روتوں کو ہنسانے والا نبی، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا نبی، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے نبی، وہ نبی ارشاد فرماتے ہیں بوڑھوں سے نہیں، بزرگوں سے نہیں، بچوں سے نہیں، بلکہ ورڈ پہ غور کیجئے گا، ورڈ یعنی لفظ پہ غور کیجئے گا، آقا فرماتے یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اے جوانوں کی گروہ، بزرگوں سے آقا نہیں فرمایا ہے، بچوں سے میرے نبی نہیں فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، تنہا ایک جوان لڑکوں سے نہیں کہا، بلکہ جوان لڑکا جتنے ہیں، جوانوں کی جو گروہ ہے نا، جو جماعت ہے نا، جوانوں کی جو سمودائے بنی ہوئی ہے نا، ان سمودائیوں سے آقا فرما رہے ہیں، ان جماعتوں سے آقا فرما رہے ہیں جو جوانوں کی جماعت ہے، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، لتنکہ المرأۃ ولجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها، تم عورتوں سے نکاح کرو۔ جوان بھائی سنیے گا، جس کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی، جن کی شادی ہونے والی ہے وہ بھی، تاکہ اپنی آنے والی زندگی کو ایک سنہرا زندگی بنا سکے۔ آقا نے فرمایا اے جوانوں کی جماعت، تم نکاح کرو، شادی کرو، کس سے؟ لتنکہ المرأۃ، عورتوں سے۔ اے جوانوں کی جماعت، تم شادی کرو، نکاح کرو عورتوں سے، تو چار چیز دیکھو، کیا دیکھو؟ چار چیز۔ پہلا نمبر ولجمالها، اس کی خوبصورتی دیکھو کتنی بیوٹیفل ہے، ولمالها، اس سے پوچھئے، ولمالها، پھر بیٹی والوں کو دیکھیں کتنا مالدار ہے، منی مین ہے یا نہیں، ولحسبها، پھر اس کی خاندان کو دیکھو، ولدینها، پھر اس کی دینداری کو دیکھو۔ چار چیز ہو گئے۔ ہاں ابھی سنیے، اب اس کا خلاصہ ہونے جا رہا ہے، ایمان تازہ نہ ہو جائے گا نا تو پھر کٹیے گا۔ آقا نے فرما دیا ہے جوانوں کی جماعت، تم عورتوں سے نکاح کرو تو چار چیز دیکھ لو۔ نمبر ایک، اس کی خوبصورتی کو دیکھو، لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں، پھر اس کی پھر دیکھو لڑکے والے مالدار ہے یا نہیں، پھر اس کے خاندان کو دیکھو خاندانی شرافت ہے یا نہیں، پھر اس کی دینداری کو دیکھو لڑکی دیندار ہے یا نہیں۔ بات ہو گئی ختم، چار چیز کا حکم آقا دیا ہے۔ ولدینها، فاذکر بذات الدین، اگلا جملہ پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ ہاں میرے بھائی، آقا نے فرمایا نا لتنکحوا یا معاشر الشباب لتنکحوا المرأۃ ولجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها فاذکر بذات الدین، فاذکر بذات الدین، اس الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ اب آقا نے چار چیز کے بنا پہ شادی کرنے کا حکم دیا ہے جوانوں کو، اے جوانوں کی جماعت چار چیز دیکھو لڑکی والوں کے اندر، پھر آقا نے تین چیز سے منع کر دیا۔ پھر آقا نے بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں، بڑی پیاری بات بتانے لگا ہوں، اگر یہ بات چھوڑ کر کے جو جائیں گے نا آنے والی شادیوں میں پچھتائیں گے بھائی۔ ہاں بڑی اچھی بات بتانے لگا ہوں، اتنی اچھی بات آپ کو کوئی سیجم نہیں بتا سکتا ہے، مکھیا پنچایت سمیتی کوئی نہیں بتا سکتا۔ دیکھیں آقا نے تین چیز سے منع کر دیا،
अब भाई सवाल पैदा होता है, ए मेरे आका फिदाक उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मैंने आलम तसव्वुर में आका से सवाल किया, ए मेरे मावा मलजा नबी, ए शम्सुद्दुहा नबी, फिदाक उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आपने तो जवानों से कहा है 4 चीज के बिना पे शादी करो, फिर 3 चीज से क्यों रोक दिया गया है, फिर 3 चीज से क्यों मना किया गया है, फिर 3 चीज से बाज रहने को क्यों कहा गया है। और जब 3 चीज से रोकना ही था बयान नहीं करते, 3 चीज से मना ही करना था तो फिर 4 चीज का हुक्म नहीं देते, एक ही चीज का हुक्म दे देते। हे मेरे आका, हे मेरे आका, हे मेरे बाबा, हे मेरे मलजा नबी, हे मेरे शम्सुद्दुहा नबी, जब आपने 4 चीज का हुक्म दिया है तो फिर 3 से मना क्यों किया है, फिर 3 से मना क्यों किया है। जब एक ही के बिना पे शादी करनी थी तो आप एक ही का जिक्र फरमाते, 4 चीज के बिना पे शादी करने का क्या मतलब बनता है, जबकि हमें एक ही चीज देखना है, 3 चीजों को छोड़ देना है। मेरे आका नबी फरमाते हैं, वो मेरे शम्सुद्दुहा नबी फरमाते हैं, मा ज़ाग़ल बसरु मा तग़ा, नूरानी चेहरे वाले नबी बताते हैं, शम्सुद्दुहा नबी बताते हैं, जुल्फ़े मुंह पर रखने वाले नबी बताते हैं, जिसका चेहरा वद्दुहा, जिनकी जुल्फ़े वल्लैली इज़ा सजा, जिनका आंखें मा ज़ाग़ल बसरु मा तग़ा, जिसकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका हाथ यदुल्लाह फौक़ा ऐदिहिम, जिनका गुफ्तार मा यंतक़ु अनिल हवा इल्ला युह्यिहा, जिसकी गुफ्तार ये है अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मेरे शम्सुद्दुहा नबी फरमाते हैं, मेरे कलमा पढ़ने वाले मेरी गुनहगार उम्मती जो जरा गौर करो, क्योंकि मेरे सामने माज़ी हाल मुस्तक़बिल तीनों ज़माना है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सामने पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। मेरे सामने आका फरमाते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सभी काले मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे उम्मती जो जरा गौर करो, मैंने जो 4 चीजों के बिना पे शादी करने का हुक्म दिया है, फिर 3 चीजों से मना कर दिया है। मैंने ये कहा, ए मेरे जवानों की जमात, तुम मालदारी दे करके मालदार लड़कियों को मत ले आना अपने घर। कहीं ऐसा है कि वो आज मालदार है, वो आज रुपया वाला है, आज पैसा वाला है, आज दिरहम दीनार वाला है, अगर तुम मालदारी के बिना पे शादी कर रहे हो। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सामने तो तीनों जमाना है, माजी भी है, हाल भी है, मुस्तकबिल भी है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सामने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी है। अगर आज तुम शादी के बिना, आज तुम मालदारी के बिना पे शादी कर ले रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि वही माल, पैसा, रुपया, पैसा, दिरहम दीनार उसे राहे खुदा से दूर कर देंगे। वो रुपया उसके राहे खुदा में नहीं जाएगा, मस्जिदों में नहीं लगाएगा, मदारिसों में खर्च नहीं करेगा, गरीबों का सहारा नहीं बनेगा, फकीरों को खाना नहीं दिलाएगा, लेकिन उसी पैसे को लेकर के शराब की अड्डों को आजमाएगा और शराब की भट्टियों को आबाद करेगा। उसी रुपया को लेकर के जुआ के अड्डों पे बैठेगा, उसी रुपया को लेकर के शराब पिएगा और समाज में कितनों फसाद बर्पा करेगा। इसलिए मेरी गुनहगार उम्मती, तुम मालदारी के बिना पे मत जाना। आका आगे शाह फरमाते, इसका रीजन आका बता दीजिए, फिर अगला रीजन को देखिए। मेरे आका अगला रीजन को बता रहे हैं, जवानों की जमात, तुम लड़की को देख रहे हो ना, आजकल के हमारे नौजवान भाइयों की पसंद भी अलग अलग है। पता है, बताओ क्या पसंद है मेरे भाई, थोड़ा गुस्सा मत होइएगा। ये हमारा समाज है, ये हमारा मुआशरा है, ये हमारा मुआशरा है, ये हमारा समाज है, और हम अपने समाज से बुराई हम नहीं खत्म करेंगे तो कौन करेगा। हम अपने समाज से हम बुराई का खात्मा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम अपने मुआशरे से बुराई हम नहीं भगाएंगे तो कौन भगाएगा। आज मेरे जवान भाइयों की पसंद भी अलग अलग होती है। मेरे नौजवान कहते हैं, मेरी होने वाली पत्नी इतनी खूबसूरत होना कि 50 एंड हैंडसम होनी चाहिए। मेरी बीवी जो हो, आने वाली जो बीवी हो ना, उनके हेयर कटे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हमारे नौजवान भाइयों की पसंद है, जो मेरी बीवी हो उनकी हिप्पी कटी होनी चाहिए, हिप्पी वुमेन हो। और कीजिएगा, मेरे आका पर मेरे नौजवान भाइयों की यही पसंद है, जिनके हिप्पी कटे हो, जिनका चेहरा खूबसूरत हो, जो मोबाइलों पे घंटों चैटिंग करने वाली हो, जो शादी के बाद भी नौकरी करके हमें खिला सकता हो, हमारी परवरिश कर सकता हो, वो हमारे साथ दिनों रात ऑनलाइन चैटिंग करने वाली हो, वो कंप्यूटर चलाने
वाली हो, वो मोबाइल का जानकार हो। आज हमारे नौजवान भाइयों को ये पसंद है, मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे गुनहगार उम्मतियों, कलमा पढ़ने वाले नौजवानों, खूबसूरती के बिना पे मत जाना, खूबसूरती के बिना पे तुम आज तो शादी कर लोगे। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सामने तीनों जमाना है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, प्रेजेंट भी है। अब मेरे आका फरमाते हैं अगर आज तुम खूबसूरती के बिना पे शादी कर ले रहे हो, कल एक दिन ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी भी आने वाली है कि उसके चेहरे से उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, उसके चेहरे से वो निखार खत्म हो जाएगा, उनके चेहरा वो चेहरा नहीं रहेगा जो शादियों के जमाने में रहा करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका फरमाते हैं हे मेरे नौजवान भाइयों, मेरे आका फरमाते हैं खूबसूरती के बिना पे शादी मत करना, क्योंकि आज खूबसूरती के बिना पे शादी कर लोगे, एक जमाना ऐसा आएगा उसकी खूबसूरती इसके चेहरे से छीन ली जाएगी, उसकी खूबसूरती इसके चेहरों से खत्म हो जाएगी, उसकी खूबसूरती इसके चेहरों से जाहिल हो जाएगी। और जैसे ही उसकी खूबसूरती उसके चेहरे से जाहिल होगी ना, उसके चेहरे से खूबसूरती खत्म होगी ना, तो तेरी जो मोहब्बतें बनी थी धीरे धीरे वो मोहब्बत नफरतों में बदलने लग जाएगा, धीरे धीरे तेरा दिल उसके तरफ से खत्म होने लगेगा। इसलिए खूबसूरती के बिना पे शादी मत करना। मेरे आका ने इसकी भी निशानदेही फरमाया है। आगे चलिए, अब चलते बोली हस्बी हा, अब उसके खानदानी शराफत को भी देखना है। मेरे आका ने इससे भी मना फरमाया है, मेरे आका ने इससे भी मना फरमाया है। मेरे आका ने फरमाया है कि खानदान को देखो, उसका खानदान कैसा है, सोमो सलात का पाबंद है या नहीं, परहेजगार है या नहीं, तकवा शार है या नहीं, नमाजो रोजा और जो ज़कात का पाबंद है या नहीं। मेरे आका ने इसी की निशानदेही फरमाया है। मेरे आका फरमाते हैं ए जवानों की जमात, आज तुम शादी कर ले रहे हो, भले आज तुम लड़की देखने के लिए गए हो, रिश्तेदार अच्छा मिला है, घराना अच्छा मिला है, परहेजगारी है, तकवा शारी है, बुजुर्गी है, हर चीज है, लेकिन ए मेरे नौजवानों, ए मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों, जरा गौर करो। मेरे आका फरमाते हैं उस खानदानी शराफत पे भी मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो आज शराफत का लिबास पहना है, वो आज शरीफ पहना है, कहीं ऐसा आएगा कि उसी घर के लोग कल बाजारों में फिरेंगे, कल शराब की भट्टियों में बैठेंगे, कल जुओं के अड्डों पे जाएंगे, वही से घर के लोग कहीं समाज में कितनों फसाद बर्पा करेंगे। इसलिए तुम खानदानी शराफत को भी मत देखना। मेरे आका ने तीनों की निशानदेही फरमा दी जाए और तीनों चीजों से शादी करने को मना की जाए। अब आगे आका फरमाते हैं वली दीन यहाँ पर सुरजाती दीन। आका फरमाते हैं ए मेरी उम्मतियों, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मेरी गुनहगार उम्मतियों, मालदारी के बिना पे शादी नहीं करना है, मालदारी के बिना पे शादी नहीं करना है, खूबसूरती को नहीं देखना है, हस्ब नसब को नहीं देखना है। वली दीन यहाँ तुम लड़की में दीनदारी तलाश करो, तुम लड़की में नमाज तलाश करो, तुम लड़के में कुरान तलाश करो, तुम लड़के में रोजा तलाश करो, तुम लड़के में पर्दे का एहतमाम देखो, लड़की कितना बापर्दा है, लड़की कितने कुरान की कारिजा है, लड़की कितने वक्तों की नमाज पढ़ती है, लड़की कितने रोज महीनों के रोजे रखती है, लड़की कितने तकवा शार है। मेरे आका फरमाते हैं वली दीन यहाँ वस्फ़ बिज़ाती दीन, तुम दीनदार औरतों को चुन लो, और जब तुम दीनदार औरतों को चुन लोगे उसी में तुम्हारी कामयाबी है, क्योंकि दीनदारी एक ऐसी चीज है कि दुनिया में भी साथ में रहती है, कब्र में भी साथ में रहती है, और जब कब्र से उठाया जाता है मैदान महशर में भी परहेजगारी उसके साथ साथ। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे नौजवान भाइयों गौर करें, मेरे आका ने सभी की निशानदेही फरमाया है। लड़कियों में तलाश करनी है नमाज, लड़कियों में तलाश करनी है पर्दा, लड़कियों में तलाश करनी है रोजा, लड़कियों में नमाज तलाश करनी है कुरान की कारिजा, लड़कियों में तलाश करनी है पर्दे का एहतमाम। लड़की कितना बापर्दा है आज हमारे मुआशरे में, आज हमारे समाज में, जो रोज बरोज गुनाहों की दलदल में इंसान फंसते हुए जा रहा है, जो रोज बरोज गुनाहों की बेहयाई और उर्जानियत में डूबते हुए इंसान जा रहा है। आखिर क्यों जा रहा है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर इसका कारण क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुने मैं इसकी तारीख बताना चाहता हूँ, आखिर इंसान इतना बेहुदा क्यों हुआ है, आखिर बेराह रवि क्यों चला है। तारीख उलटिए तब समझ में आएगा। एक दीन इस्लाम है जिसकी निशानदेही
अल्लाह की किताब कुरान पाक बयान कर रहा है, इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम। अगर अल्लाह के नजदीक कोई दीन है, कोई पसंदीदा दीन है, कोई अच्छा दीन है, कोई सुथरा दीन है, कोई बेहतर दीन है, तो वो दीन इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। अब देखे अभी दीन आया नहीं है, अभी दीन आया नहीं है, अभी दीन आया नहीं है। बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा है, अभी दीन आया नहीं है। औरतों को पति के चीते पे जिंदा जलाया जा रहा है, अभी इस्लाम आया नहीं है। बेहयाई फैली हुई है, अभी इस्लाम आया नहीं है। शराबों का बाजार गर्म है, अभी इस्लाम आया नहीं है। जुआ का अड्डा सजा हुआ है, अभी इस्लाम आया नहीं है, अभी इस्लाम आया नहीं है। बेराह रवि का जमाना चल रहा है। अब देखे इस्लाम आया, ये बेहयाई हमें आया कहाँ से? इस्लाम आया, नबी आए, इस्लाम लेकर के आए, नबी आए, दीन लेकर के आए, रसूल आए, कुरान लेकर के आए, रसूल आए, अल्लाह का पैगाम लेकर के आए, रसूल आए, अल्लाह का हुक्म लेकर के आए, नबी आए, अल्लाह के हकाम लेकर के आए, और वही हकाम बंदों तक पहुंचाते रहे। अब इस्लाम आया है, अब तारीख इस्लाम पढ़िए, अब तारीख इस्लाम पढ़िए, फिर समझ में आएगा। इस्लाम के औराक उलटिए, फिर समझ में आएगा। मेरा नबी आया है, ये इस्लाम दुनिया में आए हैं, दीन लेकर के आए, इस्लाम लेकर के आए, कुरान लेकर के आए। शरीयत मेरे नबी के घर से चला है, कुरान मेरे नबी के घर से फैला है, दीन मेरे नबी के घर से पूरी दुनिया में फैला है। जो दीन इस्लाम, जिसके खातिर मेरे नबी, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिसके सदक़े में हम खाते हैं, उस नबी को इस दीन को फैलाने के लिए, मजहब इस्लाम को फैलाने के लिए उनके जिस्मों पे कोरे डाले गए हैं, उजरिया डाली गई है, उजरिया डाली गई है। कौन नहीं तारीख को जानता है? कल मैदान महशर में अगर फातिमा सारी माओ से पूछेगी, आज हमारी माँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती है, रोजा नहीं रखती है, रोजों का एहतमाम नहीं करती है, नमाज नहीं पढ़ती है। मेरी माँ बहनें जहाँ है वो भी सुने, मेरी माँ बहनों से कही जाती है, मेरी माँ बहनों नमाज पढ़ो, नमाजों का एहतमाम करो। मेरी माँ बहनें कहती है कि क्या करे मौलाना, क्या करे मौलाना, बच्चा लोग है पेशाब पैखाना कर देता है, फुर्सत ही नहीं मिलती कि नमाज पढ़ो, उठती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं माँ बहनों, मेरी माँ बहनों जरा गौर करें, जिन बेटों के लिए आज तू नमाज छोड़ रही है, जिन बेटों के लिए आज तू रोजा छोड़ रही है, जिन बेटों के लिए कुरान की तिलावतें छोड़ रही है, जिन बेटों के लिए सौम सलात छोड़ रही है, जिन बेटों के लिए आज तू बेपर्दा घूम रही है ना, कल वही बेटा जब जवान होगा तुझे माँ भी नहीं कहेगा, तुम्हें माँ कहने से भी वो शर्माएगा, और जब उसकी शादी हो जाएगी ना, वो तेरी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखेगा। उसी बेटों के लिए तू नमाज छोड़ रही है, उन्हीं बेटों के लिए तू रोजा छोड़ रही है, उन्हीं बेटों के लिए तू कुरान की तिलावतें छोड़ रही है, उन्हीं बेटों के लिए तू सौम सलात छोड़ रही है। ये मेरी माँ बहनों जरा गौर करो, जब तुम मैदान महशर में उठाई जाओगे ना, खातूने जन्नत तमाम जन्नती औरतों की सरदार फातिमा तो ज़हरा से फातिमा तो ज़हरा होगी, वो फातिमा पूछेगी, ये मेरी माँ बहनों, ये मेरे नाना जान की कलमा पढ़ने वाली उम्मतियों, जरा ये बताओ कि मैं भी बच्चा पैदा की हूँ, मैं भी अपने लाल की परवरिश की हूँ। बेटा तूने भी पाली है, दूध तूने भी पिलाई है, मैं भी अपने लाल को पाला था, मैं भी अपने लाल को दूध पिलाई हूँ। लेकिन ये मेरी माँ के, मेरे नाना जान की कलमा पढ़ने वाली खवातीन इस्लाम, जरा गौर कर, जब इस्लाम ने और दुश्मन इस्लाम ने जब इस्लाम को चैलेंज किया है, जब इस्लाम को मिटाने की कोशिश किया है, जब इस्लाम को चुनौती दिया है, जब इस्लाम को नर्हे में लेने की कोशिश की है, ये मेरी माँ बहनों, मैं भी अपनी औलाद को पाला था, मैं भी अपनी औलाद को दूध पिलाई थी। लेकिन जब इस्लाम और दुश्मन इस्लाम ने इस्लाम को चैलेंज किया है, तो उसे लाल को करबला के मैदान में मैंने कटवा दिया है, इस्लाम को बचा लिया है। ये मेरी माँ, बता तूने कितनी औलादों को कटवाया है, बता तूने कितनी औलादों की कुर्बानी दी है, बता तेरे सामने में मेरे बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी तरह कहा गया है, तू भी सुनती रही है, तेरा बेटा भी सुनता रहा है। मेरे सामने बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां दिया गया है, तू भी सुनती रही, तेरा बेटा भी सुनते रहा। बता तेरे सामने मेरे बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को जमाल की तरह कहा गया, तू भी सुनती रही, तेरा बेटा भी सुनते रहा। बता मेरे बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी तरह कहा गया, तू भी सुनती रही, तेरा बेटा भी सुनते रहा। बता तेरा बेटा, मेरा बेटा, इन दोनों बेटों में क्या फर्क है, तो मुझे आज कर लेने दिया जाए। दुनिया के तमाम माओं के बेटे को एक पल्ले पर रखा जाए, फातिमा के दो बेटों को
میری ماں بہنوں غور کریں، بتائیں وہ فاطمہ نے بھی اولاد پانی ہے، دودھ پلائی ہے، لیکن جب دشمن اسلام نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اپنی اولادوں کو کٹوایا ہے لیکن اسلام کو بچایا ہے، نماز نہیں چھوڑی ہے۔